बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बीट स्पेशल में आपका मेहमान आमिर सलामत हाजिर खिदमत है। आज हम बात करेंगे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेटों की कारकर्दगी और जो दुकानदार यहाँ पर सरकारी निर्खनामों पर अशिया खुर्दोनोश बेच रहे हैं, फल हो, सब्जियाँ हो, दालें हो, उन बारे में बात करेंगे। और हम अचानक से जाएंगे, पहले रेट पूछेंगे, उसके बाद जानेंगे कि असल हकायक क्या हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटियां क्या कर रही हैं, सब्जी व फ्रूट मंडियों में क्या रेट्स होते हैं, जिसके बाद जो एंड कंज्यूमर है उसको कितने महंगे दामों अशिया मिलती हैं, फल वो कभी सरकारी निर्खनामों के मुताबिक खरीद पाएंगे या नहीं, और जिला इंतजामिया की क्या कार्रवाई होगी। आज के प्रोग्राम में आपको सब हकायक बताएंगे। जापानी फल 120, अंगूर किस तरह लगेगा? कितना हो? 310। ते अनार लाल किस तरह है? 260। जापानी फल 120 है, 310। ते काला कुल्लू सेब 220 रुपए। 220 रुपए 220 ते लगन के सेब किस तरह? 220। अंगूर 310 ते केला 80 रुपए। ठीक है। जापानी फल किस तरह है? जापानी 120 रुपए का 120 पर इत्थे की है जापानी फल का रेट? ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ देखो अंगूर का इन्ना फर्क क्यों है? सरकारी रेट 225 है तो 310 ਕਿੰਜ ਪੈ ਰਿਹਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕੰਮ? ਮਹਿੰਗਾ ਹੈਗਾ ਹੀਗਾ ਮੈਂਡਾ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਤੁਹਾਡੀ? ਉੱਥੇ ਮੰਡੀ ਕੋਲ ਮੰਡੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਆਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਦਾ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਮਸਲ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਰੇਟ ਇਸ ਤੇ। ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮਹਿੰਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਦਾ? ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੌਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਦਾ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਦਰਖਾਨੀ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਕੇਲੇ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ 40 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਬ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਬ ਤੇ 60 ਰੁਪਏ ਕਹਿੰਦੇ ਸਸਤਾ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 200 ਰੁਪਏ ਵੇਚ। ਸੇਬ ਵੀ 3-4 ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਮੈਦਾਨੀ ਹੈ, ਪਹਾੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਾਲਾ ਕੁੱਲੂ। ਤੇ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕੁੱਲੂ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ? ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਜੀ, ਕਾਲਾ ਕੁੱਲੂ ਦਾ ਰੇਟ 125 ਰੁਪਏ ਆ। ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? 200 ਰੁਪਏ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸੀ। 75 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ। ਕਾਜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਸਰ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ? ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਇਹ ਫਿਰ ਲਿਸਟ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਇਸ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਦਾ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੰਡੀ ਤੇ ਕੌਣ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਣਦਾ? ਮੰਡੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਮਾਲ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ? ਮੰਡੀ ਸਵੇਰ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਵਜੇ 5 ਵਜੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਫਿਰ ਕਿੰਜ ਰਿਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਦੇ। 2-3 ਹਜ਼ਾਰ। ਤੇ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਆਓ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ, ਇੱਧਰ ਆਣਾ। 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਨਾ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਹੀਂ, ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 2000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ 2000 ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੱਟਣਾ ਪੈਣਾ ਫਿਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ ਲਿਸਟ ਦਾ ਕਿ ਲਿਸਟ ਕਿੱਥੇ ਕੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਲਿਸਟ ਦਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਖਲ ਹੈਗਾ, ਲਿਸਟ ਦਾ ਉਹਦੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੇਚਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੇਚ ਪਾਉਂਦੇ ਯਾਰ? ਮੰਡੀ ਦਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਮਹਿੰਗੇ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਰੇਲ ਲਿਸਟ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ, ਮੰਡੀ ਦਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਵਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ।
ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਕਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਬ ਹੀ ਗਿਆ ਅਨਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਾਪਾਨੀ ਫਲ, ਹਾਂਜੀ ਜਾਪਾਨੀ ਫਲ ਤੁਸੀਂ 120 ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਫਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਰੇਟ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਜਾਪਾਨੀ ਫਲ 84 ਰੁਪਏ ਤੇ 88 ਰੁਪਏ ਤੇ 120, ਇਹਦਾ ਵੀ 40 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ। ਅਨਾਰ ਦਾ 180 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੰਡੀ ਦੀ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੰਡੀ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਸ मंडी ये हो गया। हाँ जी मंडी ही जवाब बन रही है। बिल्कुल। जी बिल्कुल नाजरीन, मंडी में दुकानदारों का ये कहना है वो क्या करें, इस ये जो रेट लिस्ट है ये एक सादा कागज है, इस पर जो खरीदो फरोख्त है वो तो मुमकिन दिखाई नहीं देती। 50-50 60-60 रुपए का फर्क फी फल का किलो के हिसाब से महंगा रहा है। दुकानदारों की बात आपने सुनी, जुर्माना होता है, फिर किधर से पूरा करना है, इधर से पूरा करना पड़ता है। मंडियों में चेक एंड बैलेंस नहीं है, सुबह सुबह जो नीलामियाँ होती हैं उनको देखने के लिए अफसरान वहाँ पर नहीं होते। और भी दुकानदारों से बात करेंगे और जानेंगे कि ये सरकारी निर्खनामा जो सरकार जारी करती है इसकी कितनी कोई हैसियत और औकात है जिसके मुताबिक ये खरीदो फरोख्त मुमकिन हो सकती है, नहीं हो सकती। और भी दुकानों पर देखेंगे। चल सेब के सर हैं, सेब ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਦੇ ਦਿਆਂ और ਇਹ ਸੇਬ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂ। ए थले वाला किसर है? ਇਹ 120 ਰੁਪਏ ਜੇ, ਇਹ 150 ਜੇ, ਉਹ 160। वो 160 है। ते अनार बदाना 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਇਹ ਵੱਡਾ 4.5। ਇਹ 450 रुपए किलो ਗਰੰਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਦਾਂ ਬਤਾ। बदाने। ते अंगूर ਅੰਗੂਰ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। 200 रुपए किलो। ते जापानी फल ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ए किस तरह 160 रुपए। ते सरकारी रेट की है? ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਛੁੱਟੀ नहीं लिस्ट पे पाई है। ਲਿਸਟ ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਮੰਡੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਸਟ ਵਾਲਾ ਤੇ ਲਿਸਟ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। मंडी बंद ते लिस्ट दे जांदा। आ जाओ। एक काला कुल्लू हैगा जे 125 रुपए किलो। ਇਹ ਕਾਲਾ ਕੁੱਲੂ 125। ਇਧਰ ਆਓ ਜਰਾ, ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 125 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ 160, 40 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ। ਠੀਕ ਕਿੰਝ ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ? ਇਹ ਬਾਊ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀਆਈਪੀ ਹੈ। ਵੀਆਈਪੀ ਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਵੀਆਈਪੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 120 ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ 125 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਤੇ ਰੇਟ ਹੈਗਾ 63 ਰੁਪਏ। ਸਰ ਸੇਬ ਤੇ ਸਾਰੇ 63 ਰੁਪਏ ਕਾਲਾ ਕੁੱਲੂ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ। 4 ਆਈਟਮਾਂ ਦੇ ਸੇਲ ਹੈ। ਅਵਲ ਸੁਣੋ, ਹਾਂ ਅਵਲ ਹੈਗਾ 120 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਠੀਕ स्पेशल नहीं लिया उन्होंने, स्पेशल शायद को होएगा। ठीक है। ठीक है। दूसरा अल्लाह ताला भला करे अंगूर जेड़ा है काफी 170 रुपए किलो। ठीक है। अनार दाने वाला जेड़ा वो 180 रुपए किलो लाया। ठीक। 400 रुपए दस रहे हो। बस एक ही फर्क है, बदाना 250 रुपए, 150 रुपए का फर्क ਇਹ है। 350 ਰੁਪਏ ਮੰਡੀੋਂ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। अच्छा फिर मंडी च क्यों नहीं चेक एंड बैलेंस करते हैं? ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਰੋਲਾ ਵੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਭਾਅ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੌਦਾ ਲੈ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਨਾਲ ਹੀ 10 ਰੁਪਏ ਥੱਲੇ ਵੇਚਾਂਗੇ। अच्छा पर ये सुबह ਹੁੰਦਾ है ਜਦੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਰ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਸ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 1-2 ਦਫਾ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ 2000 4000। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੋਝ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ। ਬੋਝ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਇਹ ਰੁਲਨੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ। ਤੇ ਆਵਾਮ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਓ ਇਹ ਥੱਲੇ ਪਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਐਸ ਕਿਉਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਮੰਡੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਜੇ ਮੰਡੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਣਾ ਯਾਰ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ 100 ਰੁਪਏ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੇ 120 ਰੁਪਏ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਗਿੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਣ ਗਿੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਰੋਡ ਤੇ ਹੀ ਪੁੱਛਣ ਗਿੱਛਣ ਵਾਲਾ। ਰੋਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਬਸ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰ ਤੇ ਆਵਾਮ ਐਸੇ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਆਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਆਵਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ। ਵਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ। ਵਾਮ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੇ ਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਇਹ 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋਣਾ, 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ ਵੇਚਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਆਲੂ ਸਸਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਲੂ ਮਹਿੰਗੇ ਆ ਤੇ ਸੇਬ ਸਸਤੇ ਆ। ਸੇਬ ਸਸਤੇ। ਪਰ ਸੇਬ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ? ਮੈਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ। 20 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ
ਜੀ। ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੌਦਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂ ਖਰੀਦਿਆ? ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਦੀ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ? ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਿਕਿਆ। ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਸੌਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕਲੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੇਚਨੇ ਆ। ਬੋਜੀ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਫਾੜ ਕੇ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਣ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੌਦਾ ਲੈ ਦੇ। ਆ ਹੁਣ ਬਦਾਨਾ ਨਾ ਰੇ ਇਹ ਹੁਣ 3100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਟੀ ਹੈ ਤੇ 8 ਕਿਲੋ ਇਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਭਾਅ ਪੈ ਗਿਆ? ਤੇ 400 ਨਾ ਵੇਚਾਂਗੇ 300 ਵੇਚਾਂਗੇ ਤੇ ਹੱਥੋਂ ਪੈਣਗੇ ਪੈਸੇ। ਹੱਥੋਂ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ लिस्ट 20 साल हो गए जी नाज़रीन, 20 साल दुकानदार को हो गए हैं, ना इस रेट के मुताबिक सौदा बेच सके हैं, ना ही मंडी से मिल सका है। क्योंकि मंडी से मिलता तो शायद इस रेट लिस्ट के मुताबिक बेचते। हमारे पास सामने एक गाहक है जी, वो देख खरीदारी कर रहे हैं, उनसे सिर्फ जानेंगे। चूंकि दुकानदारों का तो कहना है कि ये एक रद्दी का ना टुकड़ा ही है हमारी नज़र में भी। दुकानदार ने बड़ा अच्छा इंकशाफ किया है कि 20 साल हो गए उसको कारोबार करते और बदकिस्मती से इस कारोबार के दौरान उसने कभी ना इस रेट पर सौदा बेचा और ना ही उसको कभी मंडी से मिला। यहाँ पर एक फैमिली है, खरीदारी कर रही है। सर अस्सलाम वालेकुम, बेटा आप ठीक हो? वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये बताइएगा, ये रेट लिस्ट है, कभी इसके मुताबिक सब्जी खरीदी हो, फल खरीदे हो? लगाई नहीं होती इन्होंने कभी, पता ही नहीं हमें ये रेट लिस्ट लगाते भी हैं कि नहीं। लगाई भी नहीं कभी? नहीं। खरीदा भी नहीं कभी? अच्छा पूछते नहीं है, कीमत ऐप है पंजाब गवर्नमेंट की, वो दावे करते हैं कि शिकायत करें, शिकायत सेल के नंबर हैं, उस पर कार्रवाइयाँ की जाएंगी, होता कभी? नहीं जी, किसी के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि इन चीज़ों की तरफ ध्यान दें। तो आप चाहते नहीं कि आपको जो सरकारी रेट है उसके मुताबिक? ये तो सरकार को चाहिए ना, हमें इन चीज़ों से हमें पता होगा तो हम कहीं किसी जगह पे जाके कंप्लेन करेंगे ना। अच्छा नहीं सर, पर ये सरकार ने, एक दुकानदार ने बड़ा अच्छा इंकशाफ किया है, कहता है 20 साल हो गए मुझे काम करते, ना इस रेट के मुताबिक कभी बेचा है, ना ही कभी मंडी से मिला है। उनकी बात भी ठीक है कि अब मंडी से सौदे महंगे ला के तो अपनी लिए कमाई किस तरह करेंगे। तो फिर गवर्नमेंट क्यों कहती है आवाम को रिलीफ मिलता है, ये सरकारी निर्खों पर अमल दरामद ये वो? रिलीफ वोट किसको डाला था आपने? रिलीफ तो वोट नून लीग को डाला था। नून लीग को डाला था? जी हाँ। वो जिस 2 साल हो गए हैं गवर्नमेंट को आए, तब्दीली सरकार की, उनको क्या पैगाम देंगे कि ये सरकारी लिस्ट ना भेजा करें? इस लिस्ट का फायदा ही कोई नहीं है, अगर इस पे अमल दरामद ही नहीं होना तो ये कागज का टुकड़ा है, इस पे जाया करने का कोई फायदा नहीं है। सब्जी फल हर चीज पहुंच से बाहर है। पहुंच से बाहर। सर जो दालें खरीदते हैं जी, वो भी इसी रेट में मिलती हैं? इसी के यार रेट का पता ही नहीं है, अपनी मन मर्जी के रेट उन्होंने लगाए हुए हैं। हाँ जी बिल्कुल। नाजरीन सूरत ये है कि सरकारी लिस्टें मौजूद हैं, कीमत ऐप मौजूद है, सारा कुछ मौजूद है, मगर बदकिस्मती से इन पर ना तो कोई अमल दरामद है, ना ही इस रेट पर कोई खरीदारी होती है, ना बेचा जाता है। दुकानदार कहते हैं मंडी महंगी है, जाहिर सी बात है वहाँ से महंगा मिलेगा एंड कंज्यूमर। तो ये प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ सिर्फ जुबानी जमा खर्च करके सब अच्छे की रिपोर्ट कर रही हैं, गवर्नमेंट को ये बताया जा रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, मगर मंडियों में नीलामी के वक्त कोई सरकारी एहलकार नहीं होता, दुकानदार ये क्लेम कर रहे हैं। और भी लोगों से बात करेंगे और भी चीज़ें जानेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक नाज़रीन, सडनली हम आए हैं दुकान पर, खरीदारी कर रहे थे। सर प्याज लिया आपने जी। किस तरह किलो लिया? 80 रुपये किलो। और टमाटर? 160 रुपए। और आलू? आलू 70 रुपये। 70 रुपए किलो। सरकारी रेट आपने पूछा इनसे कि नहीं? नहीं मैंने नहीं पूछा। सर क्यों नहीं पूछा? गवर्नमेंट तो कहती है सरकारी रेट के असल मुताबिक। में घर से बार बार कॉलें आ रही थी कि जल्दी से आज मेहमान आए हैं तो उसी जल्दी ले वो वहीं पे बेटा सरकारी लिस्ट क्यों नहीं लगाई आपने? प्याज का रेट क्या है सरकारी? आए ना, वो लगी हुई है सरकारी लिस्ट। नहीं आज की भी है, हमारे पास है, आज आपको मैं दिखाता हूँ। 140 रुपये पाव ये है। 140 रुपये पाव आई है। बेटा ये चीज सरकार के रेट के मुताबिक आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? सरकार के रेट के मुताबिक हम तब दे जब हमें सरकार के रेट के मुताबिक मिले हमें। अच्छा, हमें सरकार के रेट के मुताबिक नहीं मिलती। आप टमाटर किस तरह बेच रहे हैं? टमाटर 160। 160 रुपये, उसका 100 रुपये रेट है आज। ठीक है, 100 रुपये रेट है। और मंडी में क्या रेट है? मंडी में पता किया है, मंडी में 150 रुपये रेट टमाटर का।
150 रुपए। और प्याज 70 रुपए किलो मंडी अच्छा यार, ये आपको जुर्माने करते हैं ये लोग? करते हैं, बिल्कुल करते हैं। जुर्माने करते हैं तो फिर इसी तरह पूरे हो जाते हैं। लेकिन उन्हें पता है ना वो अच्छा, जुर्माने। मंडी में जब आप जाते हैं सुबह, जी, बिल्कुल। कितने बजे खरीदारी करते हैं? खरीदारी 4 बजे, सुबह 4 बजे खरीदारी वहाँ पे होती है। तो वहाँ पर कोई सरकार का बंदा नहीं होता? नहीं होता, कोई नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता। आप मेरे साथ चलें इसी तरह, आपको दिखाओ, आपको बिल्कुल आपको पता चलेगा वहाँ पे आप कंट्रोल करने वाला कोई रेट वाला है या नहीं है वहाँ पे। तो वहाँ पर जब यहाँ पर आपको जुर्माने करने आते हैं, आप उनको नहीं कहते कि आते नहीं, वो कहते हैं हमारी मजबूरी है, हमने कोई मतलब पूरी करनी है, हमारे जो काम है ना हमने वो पूरा करना है, टारगेट पूरा करना है हमने, बस। उनका ये नहीं होता कि हमने मतलब क्या होता है अच्छा, ना, उनसे दोस्ती भी पड़ जाती होगी कि हाँ, चल यार, बिल्कुल ऐसा होता है। वो सब्जी सुब्जी भी ले जाते हैं कि चलो। तो सारे काम एक होते हैं, सारे काम इस तरह होते हैं, लेकिन आपको पता है फिर करना पड़ता है। उनकी मजबूरी होती है, हमारी मजबूरी होती है। और मंडी में पर यार ये एंड कंज्यूमर जो है, जिसको लिस्ट का नहीं पता, जी, गवर्नमेंट कहती है कि ये कीमत ऐप है, ये फलानी ऐप है, आप शिकायत करें, फिर अगर वो भी सब्जियां यहाँ नजराने लेके चले जाते हैं तो फिर इन पर बर्डन पड़ता है। इनका बटन ये होता है, आप जैसे आपके साथ मिलकर मंडी में जाए, मंडी में जाकर पता करें मंडी में क्या रेट है, रेट लिस्ट पे होता है, मेंशन करके भेज देते हैं वहाँ पे, रेट लिस्ट पे 50 रुपए। यार मुझे बताएं, आप कितनी देर से काम कर रहे हैं? 8-10 साल हो गए। 8-10 साल में कभी सरकारी रेट के मुताबिक चीज आपको मंडी से नहीं मिली, कभी भी नहीं मिली। 8 साल कभी भी नहीं तो मिली। इसका मतलब है 8 साल से आवाम को भी उस रेट के मुताबिक नहीं मिले। ऐसे ही है, ऐसे ही। तो फिर जब क्या? हमें नहीं मिलेगी तो हम किस तरह प्रोवाइड करेंगे? बिल्कुल 100% देखिए, की बात। हमें तो जब वहाँ पर कुछ शिकायत कभी मिली है कि यार बड़ी रेट महंगा? और कहाँ मंडी में तो डेली बेसिस पे रेट कम होते हैं, बढ़ते हैं, कम होते हैं, बढ़ते हैं। तो रेट लिस्ट का मतलब वहाँ पे इतना ज्यादा मतलब नहीं इशू बनाया था रेट लिस्ट का, बस। सितम ज़रीफ़ी ये है कि जिस बात पे हम लोग कहते हैं कि जी आज 30 रुपए प्याज है, इसका कुछ किया जाए, सुबह वो 60 रुपए हो जाता है। ये सो मोटो एक्शन है। ये तो मोटो एक्शन। पहले उन्होंने चीनी पे लिया, पहले पेट्रोल पे, फिर उसके बाद चीनी पे है, चीनी के बाद अब ये चीजें हमारे मुल्क की बेतहाशा पैदावार है। अच्छा सर, पर ये जिनमें इन दुकानदारों का गिला ठीक नहीं है कि ये ठीक कह रहे हैं, पीछे से ये 10 रुपए 5 रुपए इनका हक बनता है, चूंकि ये सुबह 4 बजे जाते हैं, ठीक है कि नहीं? किराया भी देना होता है उन्होंने, यहाँ के भी पैसे देने होते हैं। लेकिन मंडी में अब देखे, पर 3-4 दिन पहले या 5 दिन पहले 30 रुपए टमाटर थे, आज 160 है। हर चीज की शॉर्टेज कौन कर रहा है? पूछने वाले कोई नहीं है। अच्छा, पर हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पूछने वाले कोई नहीं है और ये ना। दुकानदार- जितने भी वसीर मशीर हैं, उनको ये नहीं पता कि अवाम पिस रही है, मर रही है। मेरा 30,000 रुपए में घर नहीं चल रहा, बिल्कुल ठीक है। मेरा घर भी जाती है, फिर भी नहीं चल रहा। नहीं जा रहा। महंगाई इस कदर आप देखें, ये 2 आइटमें ली है मैंने और 530 रुपए बन गए हैं। तनख्वाहदार आदमी हूँ, 30,000 मेरी सैलरी है, तो कैसे इसको मैनेज करूँ मैं? मंडी से अगर चीज अगर महंगी भी मिल रही है तो वो उस रेट के मुताबिक उनकी मजबूरी है ना, मंडी से जब लेके आएंगे उनकी मजबूरी है कि अगर 150 रुपए तो 10 रुपए तो ऊपर कमाने हैं। अब आ जाके गुस्सन के ऊपर निकलता है, आते हैं वो चलान कर जाते हैं, यार वो हमारे चलान कम है, अपने चलान पूरे कर लें। चलान पूरे करके वो सर बात पता क्या है, मोहब्बत भी ये करते लोगों ने तहैया किया हुआ है कि गरीब आदमी को जिंदा नहीं रहने देना। अच्छा, फिर ये कीमत ऐप, ये फलानी ऐप, ये शिकायत, ये तो फिर फजूल हो गए ना। नहीं सर, बेमकसद मतलब ये है। तो रद्दी का टुकड़ा हो गया फिर इसका कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई एक्शन है ही नहीं जिसको कहते हैं। मैं कहता हूँ, बार बार यही कहता हूँ कि जिस चीज की हम लोग करते हैं कंप्लेंट कि यार ये आज बड़ी महंगी है, वो सुबह उससे डबल हो जाती है। जो है सब्जी वालों से बात की, वो यही कहते हैं भाईजान पीछे से ही नहीं महंगी मिलती, मंडियों में ये रेट है, तो हम सरकारी जो रेट कीमत ऐप बनाई है या चीजें बनाई हैं उसके मुताबिक कैसे भेज दे, क्या कहें? देखिए जी, इन शॉर्टली आपको बताता हूँ, एक चीज 110 रुपए गवर्नमेंट ने रेट दे दिया चावल का होलसेल पे। अब हमें होलसेल पे 110 की मिलेगी तो हम 112 की बेचेंगे ना। अब हमें होलसेल पे ही 114 की मिले और हम 115 या 16 की यहाँ पे बेचें और कस्टमर भी हमारे साथ लड़े कि जी आप ये इतना क्यों दे रहे हैं? दालों का तो बड़ा डिफरेंस है, हर दालों का जो चीज का सरकारी रेट है, सर, कीमत ऐप है, मेरे तो होस्ट गाने आगे, मैंने शायद बचपन में भी उस रेट पे ना खरीदी हो जो अब रेट दिया हो। सर, ये एक चीज का मसला नहीं है, ये चीनी ले लें, आटा ले लें, अंदर 101 मटेरियल है। ये हर चीज के पीछे जिसका जो चल रहा है ना, जो डॉन बना हुआ है होलसेल मार्केट में, वो डॉन बना हुआ है। अब वहाँ पे ये कोई नहीं चेक करते वहाँ पे जाके, ना इनका कोई ऑफिसर जाता है कि क्या रेट्स पे प्रोवाइड हो। पे कोई कार्रवाई नहीं कभी सुनी। हमारे यहाँ पे आके लोग हमसे लड़ेंगे भी, पुलिस वाले भी आ जाएंगे कि भाई आप ये 2 रुपए चीज क्यों ऊपर दे रहे हो? भाई आप उन्हें बता रहे हैं कि 112 रुपए की चीज है, हमें वो प्रोवाइड भी तो करें। बिल्कुल। हम अपना बेसन किस मार्जिन तरह किलो आपको पीछे से मिला होगा? बेसन का आज का रेट क्या मकसूद ये लगा हुआ जी, ये देखें बेसन। पर इसके मुताबिक तो मिल नहीं रहा ना, पीछे से नहीं मेरा तो आप यहाँ पर क्या बेचेंगे? हर चीज का 2 से 3 रुपए वो फर्क रखते हैं किलो के पीछे। कई चीजों में, दालों में तो बहुत फर्क है, बहुत 15-15, 20-20 रुपए का। जी। चीनी का क्या रेट चल रहा है सर आजकल? चीनी पीछे मैं आगे एक दुकानदार से बात की, वो कह रहा है कि जनाब चीनी
जब पीछे से इतना फर्क आएगा तो हमने लिफाफा लगा के मुफ्त थोड़ी देनी है या पहले से थोड़ी डालनी है। Exactly, ऐसे ही। सर क्या कहेंगे आप, गवर्नमेंट की जो ऐप आई है, ये जो दावे करते हैं, सर ये सब फजूल है। देखें ये इसके लिए इन शॉर्ट सिंपल सा एक फार्मूला, एक अच्छी सी टीम बनाए ईमानदार लोगों की, सही नस्ली, जो ये wholesale नहीं, को हाँ check जी करें। जी, वो सिर्फ एक टीम बनाए, उनको पूरी अथॉरिटी दें, उन्हें कहें आप चेक करें और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आप पूरा हक रखते हैं। फिर देखें आप कौन देता है। अब जब आपने कोई टीम भी नहीं बनाई, ना कोई चक्कर है, एक फॉर्मेलिटी पूरी हो जाती है, एक टीम आती है एक हफ्ते के बाद, एक नज़र मारेगी, किसी से कुछ पैसे लेगी और चली जाएगी। आप मुझे बताएं इस सिस्टम में क्या चलेगा। और जो तंग होता है वो रिटेलर वाला होता है, होलसेलर नहीं होता है, और एंड कंज्यूमर पे बर्डन पड़ जाता है सारा। कंज्यूमर। अच्छा सर, ये जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट छापे मारते हैं, ये तो सारी ड्रामेबाजी हुई ना। शहर लाहौर की अगर बात करें जी। तो जुर्माने कितने होते हैं, कितनी दुकानें होंगी कमो बेश आपके अंदाजे में लाहौर शहर के अंदर, छोटी बड़ी डिपार्टमेंटल स्टोर, सब्जी वाले बेबहा लाखों में है, जाएंगे। बहुत है, बहुत तो है। लाखों में 30,000 जुर्माना होता है, 50,000 जुर्माना होता है जी। ये कल 1 लाख रुपया हुआ है, बिल्कुल। नए डीसी साहब आए हैं, 1 लाख कर दिया उन्होंने। जी। ये शायद 2 दिनों में बढ़ जाए जी। कि वो जब आप पर बर्डन आएगा, किसी से मिलके चला गया प्राइस कंट्रोल जी। मजिस्ट्रेट, ऐसे। किसी से नजराना ले गया, ले सिस्टम जाते तो हैं। कोई नहीं हो। जी कोई सिस्टम नहीं है जी यहाँ पे। ये जुर्माने आपको जब आगे जुर्माना करते जी हैं, यहाँ पे 1-2 बार आए हैं, उन्होंने तंग किया, उन्हें हमने बताया जी ये रेट लिस्ट है, हमने तो रेट लिस्ट के मुताबिक दे रहे हैं, आप हमें ये बताएं, हम तो अपना लॉस ले रहे हैं आप लोगों से बचने के लिए। आप मुझे बताएं पीछे जाके होलसेलर को आप क्यों नहीं पकड़ते? वो तो वक्ती तौर पे बचने के लिए ना, मगर अब वो बिक तो वाकई ज्यादा रहा होता अब है। लॉस होता है। मगर ये आपने ये जब सवाल करते हैं तो वो फर्जी जुर्माना कर दिए, वो तो दोस्तियां भी डाल लेते हैं कि चलो कोई नहीं जी, यार, डाल। मेरी मजबूरी है। सरकार टारगेट वो पूरा- आम हम जैसे सादे बंदों को वो जुर्माना भी नहीं डालते, वो कहते हैं बाहर आओ और चलो आगे। वो वहाँ पे जाके फिर जो भी कार्रवाई करते हैं वो 15-20 हज़ार का डालेंगे, और हमारे जैसे एक आम आदमी जो महीने में एक पूरा स्टोर चला के 70-80 हज़ार रुपये कमाता है, वो 20-25-30 हज़ार का तो ये लॉस दे जाते हैं, और बाकी जो लॉस रह जाता है वो उसके बाद होलसेलर हमारा हमें नहीं एक छोड़ते। दुकानदार कह रहा है उसके बाद दोस्तियां बढ़ जाती हैं। जी पड़ जाती हैं, वो जो हैवी पार्टीज हैं जो उनको पैसे फिक्स करेंगी ना उनके साथ पड़ती हैं। हम जैसे आम बंदों को वो किसी खाते में नहीं खाता लाते, पूरा कर रहे हैं वो कहते हैं बाहर आओ और ये जुर्माना पे करो, बस इससे दूसरी वो बात नहीं करते हैं। और जिनके कुछ फोन चलते हैं वो फोन वगैरह करवा के तो थोड़ा बहुत जो चलता है प्यार वो देख। बदकिस्मती का ये आलम है जी, सूरत हाल बड़ी अजीब है, और दुकानदारों का जो गिला है वो आपके सामने है कि जो सरकारी निर्ख नामों के मुताबिक अशिया की फरोख्त को यकीनी बनाना उनके लिए मुमकिन नहीं है। नजराने भी चलते हैं प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेटों को, कार्रवाई के लिए ले भी जाते हैं, मगर एंड कंज्यूमर पर तमाम तर बर्डन पड़ जाता है उसका, जो सारी महंगी अशिया हैं। मगर थोक मार्केट पर ये कार्रवाइयाँ होती दिखाई नहीं देती, जैसे सब्जी मंडियों में ये कार्रवाइयाँ होती दिखाई नहीं देती, उसी तरह ये आम जो होल सेल मार्केट्स हैं वहाँ पर भी ये कार्रवाइयाँ होती दिखाई नहीं देती। यहाँ पर वक्त है ब्रेक का, आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक मजीद बात करेंगे लोगों से और जानेंगे कि ये मसाइल किस तरह हल होंगे। ये जो कीमत है आपके दावे किए जा रहे हैं, कोई जुबानी जमा खर्च कब तक आवाम को भुगतना पड़ेगा। जी वेलकम बैक नाजरीन, बात कर रहे थे आज प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेटों की कारकर्दगी पर, लोगों से भी पूछ रहे थे। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, नौजवान रहनुमा हैं, हमजा शहबाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था पूरी धूमधाम से, और नुमाइंदगी भी करते हैं यूथ की, टिकट मिला था शहर लाहौर से। मलक साहब बहुत शुक्रिया आपका। मलक जमान साहब आज प्रोग्राम किया है, मुख्तलिफ इलाकों में गए हैं, प्राइस कंट्रोल जानी है। दुकानदार ने बड़ी मज़ेदार बातें की हैं। एक फल फरोश कहता है 20 साल हो गए हैं मुझे जनाब, मंडियों से हमें ज़्यादा रेट मिलते हैं, तो हम इस प्राइस कंट्रोल, ये तो रद्दी का टुकड़ा है, हम इस पर कैसे बेचें। फिर एक जनरल स्टोर पे गए, उसने कहा जनाब हमें 7-8 साल हो गए हैं जनाब, ना इस रेट पे मिलता है ना ही बेच सकते हैं। सब्जी वाले से पूछा, उसने भी कहा जनाब इतने साल हो गए हैं कि प्राइस कंट्रोल, यानी तब्दीली कैसे आई है, ये बताएं सर। देखिए आमिर भाई, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मेन चीज़ जो सी आपने अभी बात की ना सब्जियों और फलों की, उसमें जो सी मैं समझता हूँ मेरे नज़दीक महंगाई का जो तूफान बर्पा करने में ना हमारे मार्केट कमेटियों के अंदर जो बैठे हुए फड़िया यूनियन है उसका बहुत बड़ा किरदार है।
जो जिसको हम कहते हैं मिडल मैन, एक किसान ने आके आड़ती को चीज देनी है 10 रुपए में, और मिडल मैन ने उसके अपने पैसे रखने होते हैं 6 रुपए के हिसाब से, और 6 के हिसाब से आगे वो आएगी, वो दुकानदार को जाएगी, वो ऑटोमेटिकली 10 की चीज मार्केट में से निकलती है कोई तकरीबन 17 से 18 रुपए के अंदर। और जब ये दुकानदार अपनी अपनी दुकानों पे जाके सेल करते हैं तो उन्होंने भी अपनी नफा के हिसाब से रखना होता है, और उस हिसाब से महंगाई का तूफान लादन पर होता है। मेरे नजदीक जब तक मिडल मैन को हम कंट्रोल नहीं करेंगे, उसके ऊपर पूरा एक्शन लेंगे, उसको बिल्कुल कैफरे अंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे, तो महंगाई का तूफान खत्म नहीं हो सकता। इसके अलावा आप अभी बात कर रहे हैं दूसरी मिडल मैन की अगर बात कर लें, मिडल मैन का किरदार, तो फिर ये मार्केट कमेटियां दफा करें, ये प्राइस कंट्रोल की लिस्टें जरूर 15 रुपए की फी दुकानदार को बांट के एक नया इन्होंने अपना निज़ाम चलाया, बंद कर दें। फिर जो पीछे से आ रहा है बेच दें। फिर ये कीमत है पंजाब गवर्नमेंट के इनिशिएटिव, प्राइस कंट्रोल कमेटियां फिर दफा करते हैं ये सारा। देखिए जी, इसके ऊपर मैंने लेटर लिखे है बिल्कुल, और पहले मैंने अपने सीएम साहब को लेटर लिखा है। इसी हवाले से मैं पीएम साहब को भी अपने लेटर पैड में लिख रहा हूँ कि हम इसके ऊपर अपनी तरीके से इतनी फोकस नहीं कर रहे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम काफ़ी हद तक इस पे काबू पा लेंगे। मार्केट कमेटी की अगर आपने बात की है तो हमारे जितने 2 से वहाँ पे लगे हैं वो अपने अपने काम अच्छे तरीके से अंजाम दे रहे हैं, लेकिन वहाँ की जो फड़िया यूनियन है, मिडल मैन है, वो ज़्यादा मजबूत है, ताकतवर है। जब तक इनको हम अच्छे तरीके से हाथ नहीं डालेंगे तो हम उनके ऊपर सही तरीके से काम नहीं कर सकते। एंड कंज्यूमर बड़ा अच्छा हो गया, यानी माजत के साथ अभी आप उनको कहेंगे ना कि ये 70 रुपए की चीज़ आपको 110 में मिल रही है, अगर कानून नाफिज करने वाले इदारे कहें ना कि इनको 2 थप्पड़ भी मारें फिर 120 में लेके जाए, वो कहेंगे यार थप्पड़ मारने वाले बंदे बता दो क्योंकि असी लेट हो जाने। अवाम इस हद तक पहुंच गई है। सर मलक साहब पर बदकिस्मती से मुझे आप एक बात बताएं, फिर ये जो प्राइस लिस्ट है दफा करें या तो इसको बढ़ा दें। अवाम की कुव्वत खरीद बहुत अच्छी है जी, हमने देखा। वो कहते हैं जी, एक बुजुर्गों से बात की, कहते हैं 36 सानों मैंने फटाफट लिया है, इतना सा सामान 550 का लिया है। तो फिर ये प्राइस कंट्रोल का ड्रामा क्यों है? फिर प्राइस कंट्रोल कमेटियां क्या कर रही हैं? देखिए, प्राइस कंट्रोल कमेटियां मैं समझ तो अच्छा काम कर रही है, जिसके मिनिस्टर हमारे अशरफ इकबाल साहब हैं, वो अपनी तरफ अच्छी जॉब कर रहे हैं। दर हकीकत बात फिर वहाँ पे आती है, जब तक प्राइस कंट्रोल कमेटी को बाख्तियार नहीं किया जाएगा, मैं समझता हूँ इसमें अफसाने बाला जरूर इन्वॉल्व हो, जिसमें डीसी साहब आते हैं, डीसी लाहौर, वो खुद आए, खुद छापे मारे, लोगों को पता चले वाकई अफसाने बाला इसमें आए हुए हैं। आप देखिए मलक साहब, माफी चाहता हूँ, यहाँ पर एक सब्जी वाले ने भी कहा, और जनाब वो आते हैं नजर न्याज लेके चले जाते हैं। तो छोटे पर जो नोटिफाई प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है ना, मैं सर बीट करता हूँ तो मैंने ही नहीं पता कि किन्ने है गए, ठीक है। लेकिन और जो ऑफिसर्स के नाम है ना, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स भी हैं उसमें, ठीक है जी, उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर्स भी हैं, नीचे नोटिफाई अफसरान हैं जो कभी हमने फील्ड में तो चंद ही होंगे देखे हैं, बाकी तो नजर ही नहीं आते। उनके लोग जब जाएंगे वो पैसे इकट्ठे करेंगे। सर देखिए, मैं एक चीज बताऊं, हम जिस जगह खड़े हैं आप ये देखिए, सबने अपने अपने ठीले लगाए हुए हैं, सबने निजायत तजावज़ बनाई हुई है, और ये निजायत तजावज़ बगैर मिले नहीं हो सकती। कुछ दुकानदारों को कसूर होता है, कुछ जो हमारे इंतजामिया के बंदे आते हैं इनकी मिली भगत की वजह से ही होता है। हम किस किस को रोके? मैं तो यही कहूँगा, इस हवा में सब नंगे हैं, लेकिन हम अपनी जॉब अच्छे तरीके से अदा कर रहे हैं। इंशाल्लाह आपको नजर आएगा कि सरकार का दावा था ऐप कीमत ऐप बनाई है। कीमत ऐप पे जब रेट देखे ना मेरे तो 14 तबक रोशन हो गए हैं कि इतनी सस्ती चीज, वो इतनी अच्छी आवाज। सर सीएम साहब को, पीएम साहब को ठीक गाइड कर रहा है, बता रहा है कि नहीं बता रहा। मैं कल हंस रहा था, और मैं आपको मजे की बात है, आप इस पर कमेंट करें, मैं आपको अगला लतीफा सुनाता हूँ एक बड़ा अच्छा है। देखिए, पीएम साहब और सीएम साहब इसके ऊपर बिल्कुल बड़ी गौर से इस पे मामले में फील्ड में देख भी रहे हैं। उन्होंने अपनी अपनी जितनी भी टीमें हैं तश्कील कर भी दी हैं, और नई हिदायत भी जारी कर दी है लोगों को, आम आवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए। लेकिन देखिए, आप भी देखें ना, यहाँ पे हम आवाम भी क्या करते हैं, हम आवाम भी साथ भी देखें। इतनी अच्छी आवाम मिलेगी आपको कि आप नोटिफाई रेट कर दें, वो खरीदेंगे, थप्पड़ भी खा लेंगे वो। सर नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई, बात सिंपल ये है कि देखिए, आवाम को हमने रिलीफ दिलवाना है, वो हमारा फर्ज बनता है और आवाम का हक बनता है इसके ऊपर। लेकिन अगर देखा जाए कि जहाँ पे मार्केट कमेटी काम नहीं कर रही, उनको बिल्कुल कैफरे जहाँ तक पहुँचाना चाहिए। जहाँ पे नीचे अफसरान या उनके साथ जो हमारे दोस्त बाब है वो नहीं काम करे, उनके ऊपर बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। एक खूबसूरत सा मजाक हमारा सुन लें, जिससे गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट जारी की 6 अक्टूबर को। इस पर आपका ना सियासी क़यादत है, आप पीटीआई को प्रेजेंट करते हैं, गवर्नमेंट को डिफेंड नहीं करना, बतौर इंसान जवाब चाहिए मुझे। 6 अक्टूबर को ये जारी की गई है जी, 1 सितंबर से लेके जो है 6 अक्टूबर तक की ये रिपोर्ट है। ये तकरीबन बन जाता है 1 माह कुछ दिन, ठीक है।
10,721 इंस्पेक्शन की गई हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से, जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट शहर लाहौर के जो ताज हैं वो करते हैं, ठीक है। उसके बाद 988 खिलाफ वर्जियाँ पाई गई, 988 खिलाफ वर्जियाँ 1.5 महीने में पाएगी। मतलब लोगों को जो सरकारी निर्खनामे है ना उसके मुताबिक चीज़ घर शायद पहुँच रही है कि इसी वजह से वो पकड़ी नहीं जा रही, ठीक है। 8 मुकदमा दर्ज किए हैं जी, जेड़े को फंस गए उन्हें 8 या शायद पैसे ना दिए हो, ठीक है। उसके बाद 12,38,000 रुपए के जुर्माने किए गए हैं और मजमूई तौर पर 448 मार्केट्स का विजिट किए गए, यानी 12.5 लाख रुपए के जुर्माने 1.25 महीने में तकरीबन किए गए हैं। इतना बड़ा, लाखों दुकानें, इसका मतलब है आम आवाम तो सरकारी निर्ख के मुताबिक जब नहीं होता वो फौरन शिकायत करती है कि अभी इनको रगड़ा दे दें। ये क्या मजाक है सर? देखिए आमिर भाई, जब तक हम अपना गिरेबान नहीं ना छाकेंगे, हमें भी आपसे मैं बात करता रहूँ कि हमारी जमात, हमारी हुकूमत बड़े अच्छे काम कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि काफ़ी हद तक हम अपनी तरफ से ना नहीं डिलीवर कर सके। लेकिन आप देखें जब हमारे यहाँ पे प्राइस कंट्रोल कमेटी के जो जाली कार्रवाइयां डिस्ट्रिक्ट अफसरान जो हैं वो गलत पहुंचा रहे हैं, यानी इसका मतलब है सीएम साहब या पीएम साहब अगर मुतमिन है अगर इनकी कारकर्दगियों से तो फिर बड़ा अच्छा। भाईजान मैंने जितनी दुकानें विजिट की हैं उन सारों ने क्या, एक ने बता रहा हूँ, एक ने क्या 8 साल से बेच रहा हूँ, कभी उस दौर की भी यानी साहब दौर की भी बात कर रहा हूँ और इस दौर में भी तब्दीली भी। देखिए आमिर भाई, मैं जब भी कोई बातचीत होती है ना, आपको पता है कि कई मामला ऐसे हैं जिसमें काफी डिस्कशन की है मीडिया के आगे मैंने कि ब्यूरोक्रेसी हमें काम नहीं करने दे रही। मैं आपके सामने फिर आज यही कहूंगा, ये ब्यूरोक्रेसी के ही वाबिले हैं जिसकी वजह से हम लोगों के आगे शर्मिंदगी महसूस करते हैं और उठानी पड़ती है हम लोगों को इस चीज के ऊपर। ये बात बिल्कुल हकीकत में अपनी बात है। आज सेक्रेटरी ज़राअत बिल्कुल एक्टिव हो जाए तो आज हम काफी हद तक कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन बात क्या है, महकमा ज़राअत और इंडस्ट्री के जो उनसे नीचे अफसरान बैठे हुए हैं जिनके ज़ेर साया ये आज भी ठेले लगे हुए हैं, ये पैसा कौन खाता है? मैं ये आपसे सवाल करता हूँ। ये वही अफसरान है जो खुद महंगाई का तूफान बर्पा करते हैं। एक आम दुकानदार को क्या है, मैंने हर दुकानदार से पूछा है, अच्छा जी सब्जी वाला, फ्रूट वाला, उन दोनों का ये कहना है कि जनाब 4 बजे 6 बजे ऑक्शन होती है, उत्थे कोई नहीं होता। नहीं सर ऑक्शन में अगर कोई हो, आप सरकारी बंदा हो, जरूरत है किसी की। देखिए ऑक्शन की यहाँ पे आपने कभी ऑक्शन इस मामले में विजिट करे, प्रोग्राम करें वहाँ पे ऑक्शन किस तरीके से होती है। ऑक्शन के लिए वहाँ पे बिल्कुल सरकारी बंदे मौजूद होते हैं, लेकिन बात फिर वहाँ पे आती है सरकारी बंदों की मोनोपोली के बगैर नहीं ये ऑक्शन होती, उनकी रजामंदी के तहत ही ऑक्शन होती है, रेट निकलते हैं। मेरी बात फिर वहाँ पे आएगी, जो मिडल मैन है जिसको फड़िया कहते हैं, उसकी बदौलत ही लाहौर शहर के अंदर आज महंगाई का तूफान बरपा है सब्जियों और फलों में। आपको मैं ये बड़े दावे से कह रहा हूँ, आज ही ये फरिये को, मिडल मैन को कैफरे अंजाम के पहुंचाए। और मैं ये समझता हूँ कि आपकी यहाँ पे सब्जियों में भी कमी महसूस होगी और फलों में भी काफी हद तक कमी महसूस होगी। इसमें बिल्कुल मतलब पीएम के आगे, सीएम के आगे, डीसी के आगे, मार्केट कमेटियों के आगे बढ़िया पावरफुल है सर। देखिए जी, बात फिर वहाँ पे आ जाती है, पावरफुल होने की बात नहीं है, उनके पंजे काफी जमे हुए हैं, उनकी काफी वहाँ पे एक किस्म की मोनोपोली बन चुकी हुई है। यहाँ पे आपको पता है खान साहब अल्लाह की मेहरबानी से शुगर माफिया को उल्टा दिया उन्होंने, खत्म कर दिया सर। तो ये फड़िया, शुगर माफिया और फड़िया बड़ा डिफरेंस है। ये बात यही आ गई, मैंने अभी आपको बताया कि मैंने इसी मामले के ऊपर सीएम साहब को बिल्कुल लेटर भेजा है, अपना लेटर लिख के दिया है। उनसे मैंने गुजारिश की है कि इस मामले को देखें, सोल्ड आउट करें, क्योंकि यहाँ पे महंगाई का तूफान यही लोग बर्पा करते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों से ये बातें सुनते हैं। आज कंज्यूमर का क्या कसूर हो रहा है? जी कोई कसूर नहीं है जी, आखिरी कंज्यूमर यही बातों ही देता रहता है कि जी महंगाई 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 महंगाई, यही बात करते हैं। बंद कर देनी चाहिए सर। मैं रेट देखे, मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं, मैं परेशान हो गया हूँ कि यार मैं पाकिस्तान में कि यूरोप में हूँ। बात वाला क्या है, कीमत ऐप की जो सी आप बात कर रहे हैं ना, अभी तक इनमें से किसी दुकानदार को पता ही नहीं होगा कि इस नाम की कोई ऐप है। हमने उसकी कोई अवेयरनेस ही नहीं की, उसके हमने लोगों तक पहुंचाया ही नहीं। ना आम कंज्यूमर को पता है, ना दुकानदार को पता होगा इसकी कीमत ऐप का। ये एक बिल्कुल इसके ऊपर बिल्कुल एक हमें चाहिए भी कि एक अच्छा मैकेनिज्म बनाए जिसके ऊपर लोगों को पता हो, घर में बैठे रेट देखे, रेट लिस्ट देखे, अपने दुकानदार को फोन करे बुलवा लें। मैं आवाम से बड़ा खुश हूँ, लोगों से भी बात की, आवाम कहती ये रब रसूल दा वास्ता है, तुसी रेट वही ला दो, असी यह भी देने तैयार हाँ। तो यार रेट जो आ रहे हैं पीछे वही लगा दें, फिर ये झूठ बोल के ये लिस्टें क्यों मार्केट कमेटी वाले जारी कर रहे हैं सर?
اس کا مجھے ابھی علم نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر بالکل میں آواز ضرور اٹھاؤں گا، آواز ضرور اٹھاؤں گا۔ مارکیٹ میں آئے مل صاحب، آپ ہمارے ساتھ آئے، ایک دکاندار کھڑے ہیں جی، ساتھ سرکاری ریٹ لگا ہے جی جی جی، اس کے مطابق تھوک مارکیٹ سے کبھی چیز ملی آپ کو؟ اچھی چیز نہیں ملتی سر میں اب آپ سے سرپرائز وزٹ کر کے نا خریداری اس ریٹ کے مطابق کرنی ہے، جی پہلے ریٹ پہ اسے لینا ہے تو دوبارہ کریں گے۔ جی جی جی، دکاندار تو یہی پیٹ رہے ہیں کہ جناب تھوک مارکیٹ میں چیز ہی نہیں مل رہی، وہ کیسے بیچیں گے؟ نہیں یہ جو اب حالیہ بارشیں اور سیلاب اس کی وجہ سے تھوڑا مسئلہ آیا ہوا ہے۔ سر یہ جو باہر آپ نے لسٹ لگائی ہے جی جی بالکل اس کے مطابق آپ چیز اشیاء فروخت کر رہے ہیں، جی جی، ایسے ہی ہو رہی ہیں؟ مجبوری یہ کرنی پڑتی ہیں، کب؟ ظاہر ہے جو حالات ہیں ایسے۔ اب میں ادھر صبح 6-7 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک بیٹھتا چینی ہوں۔ کس طرح کلو میں رہی آپ کو؟ چینی آپ کو بھی پتا ہے کیا حالات ہے، نہیں چینی بتائیں کیسا مل رہی ہے، ہول سیل منڈی میں کیا ریٹ ہے اور ریٹیل میں کیا ہے، بتا دیں اپنے منہ سے بتا دیں کس طرح کلو؟ مطلب چینی آپ اوور آل 95 سے لے کے 100 تک سیل ہو رہی ہے، پیچھے سے کتنے کی آ رہی ہے؟ تقریباً 100 کے قریب ہی آ رہی ہے تقریباً۔ تو 95 کیسے بک سکتی ہے سر؟ میں نے آپ کو کہا یہ تو مجبوری ہے نا، اب کیا کریں، کوئی نہ پیسے دیتا ہے اتنے نہ ہم مطلب دے سکتے ہیں۔ اگر 95 سے سرکاری ریٹ کیا؟ سرکاری ریٹ کوئی مقرر نہیں ہے، چینی کا مقرر ہی نہیں ریٹ؟ اب ڈی سی او صاحب کی ریٹ لسٹ لگی ہوئی ہے، اس میں چینی کا ریٹ ہی نہیں ہے۔ اور چینی ہے ہی بڑے بندوں کی، ملک صاحب کیسے ریٹ نکالیں گے آپ بتائیں؟ دیکھیں جی، جو سی ایک ڈی سی ریٹ کے مطابق جو سی چیزیں ہوتی ہیں نا، تقریباً 16 آئٹمیں ایسی ہیں جو عام دکاندار کو بھی اس ڈی سی ریٹ کے مطابق بیچنی چاہیے۔ اس میں چینی کا ریٹ مقرر کیا گیا 78 پہ، پھر بعد میں اس کو بڑھا دیا گیا، پھر بعد میں بڑھاتے یہ 84 پہ چلا گیا۔ آج کا جو سا ریٹ ہے وہ غالباً وہ کوئی تقریباً 86 یا 87 روپے ریٹ ہے۔ لیکن بات پھر وہاں بھی آ جاتی ہے، یہاں پہ اگر آپ شوگر کی بات کر رہے ہیں، ایک منٹ میری بات سن لیجیے، میرے گزارش کے بعد آپ کا کمنٹ لوں جی گا۔ جی، سر کبھی تھوک مارکیٹ میں ہول سیلر ڈیلر کے خلاف کاروائی نہیں ہوئی؟ سابقہ دور کی آصف بلال لودھی صاحب نے غلطی کی تھی، انہوں نے ہول سیلر کو 10 لاکھ جرمانہ کیا، تو شاید میرے خیال سے وہ نہیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ ہول سیلر کون ہے؟ یہ آپ نے ابھی شوگر کی بات کی ہے نا، شوگر میں بھی آپ یہ میری بات یہاں پہ دوبارہ کوٹ میں کروں آپ کو یہ بات، شوگر میں بھی ابھی مڈل مین بہت کردار ادا کرتا ہے۔ ایک یہ 5 بندوں کی ملوپلی بیٹھی ہوئی ہے، پیچھے مل سے ریٹ کیا ملا 81 روپے، اسے کہہ دیا 82.5 میں مجھے دے دو، اسے کہا 83 میں مجھے دے دو، وہ بیٹھے بیٹھے 1.5-2 روپے تو بڑھ گئے، اور جب مارکیٹ میں پہنچنا اس نے تو اس کا آٹومیٹکلی 3 روپے 4 روپے کا ریٹ کا فرق آنا ہے، اور جب 3-4 روپے کا وہاں پہ فرق آئے گا تو عام دکاندار کے پاس جب چینی کا ریٹ جائے گا تو اس سے بڑھنا ہی ہے۔ لاسٹ کنزیومر کے پاس جو اس کی ایوریج جائے گی وہ آپ کو میرے سے زیادہ پتا ہے۔ بات پھر میری وہاں پہ آ گئی بھائی، بات کیا ہے، جب تک ہم میڈل مین کو نہیں کنٹرول کر سکتے، میڈل مین کو پکڑیں گے نہیں، میڈل مین کو کیفر انجام تک نہیں پہنچائیں گے تو ہم مہنگائی کا طوفان ختم نہیں کر سکتے۔ پھر ملک صاحب دعائے کیفر کردار کروا دینی چاہیے، مگر جو صورتحال ہے اوپن مارکیٹوں کی وہ یہ ہے کہ جو سرکاری نرخ نامے ہیں وہ مذاق بن کے رہ گئے ہیں۔ دکاندار، ہول سیلر مارکیٹ کے جو مڈل مین ہیں، جو منافع خور ہیں، ان کے خلاف نہ تو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو کاروائیاں کرتی دکھائی دیتی ہے، نہ ہی کوئی حکومتی اداروں کے جو اہلکار جن کو تعینات کیا گیا ہے، نہ تو سبزی منڈیوں میں کام کرتے دکھائی دیتے ہیں، جس کے باعث اینڈ کنزیومر کو سارا بوجھ سہنا پڑتا ہے۔ بدقسمتی سے پرائز کنٹرول جو کمیٹیاں ہیں وہ بھی اپنا کام کرتی دکھائی نہیں دے رہی، اور پرائز کنٹرول مجسٹریٹ کا تو ویسے ہی اللہ حافظ ہے کہ جو صورتحال ہے، جرمانوں کے عوض ملی بھگت سے ان کو نذرانے دیے جاتے ہیں۔ دکانداروں نے آج کے پروگرام میں بتایا اس قوم کا اللہ ہی حافظ ہے، اور امید کرتے ہیں کہ شاید عمران خان صاحب اور سردار عثمان بزدار صاحب جو کہ وسیم اکرم پلس تو کہلواتے ہیں، وہ ان عام عوام تک جو ریلیف پہنچانے کے دعوے ہیں وہ زبانی جمع خرچ کی بجائے عملی طور پر کر دیں۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے میزبان عامر سلامت کو، اللہ حافظ۔